Hello student, my name is Sunil and I am your computer teacher. Here in this video series, we cover the entire syllabus of Himachal Pradesh of School Education Board Class Plus 1. So, we start with the fundamental of computer and here is our first question. Our first question is, what do you mean by computer? A computer is an electronic device which convert raw data into meaningful information. We also say that a computer is an electronic machine that accepts data from user, process the data by performing calculation and operation on it and generate the output as a result. A computer is also a combination of hardware and software which convert data into information. Here in this definition we have two things. The first is data and the second one is information. Data means raw fact or figure, or in other word we can say that collection of raw data, raw fact. For example, Sunil SDPS 007 are data, because with the help of this data we cannot take any decision. So, to take decision we need information. So it is the processed data that generate after data processing which can be used to help people to make decision. So here in this definition we learn that the computer is a device that accept the input, process the input and produce the data. So here our second question, what is the functioning of computer system? Computer is responsible for performing four basic operations. The first one, input, processing, output and storage. Input, information or data that is entered into computer is called input. It send a data to central processing unit, क्योंकि जो मेरे इनपुट डिवाइस है उन्हीं का काम है सारे के सारे इनपुट को एक्सेप्ट करना. यही कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं. वो इनपुट कहाँ जाती है? मेरे CPU के पास. द वर्क ऑफ CPU is to process the data. The second is processing. It is the sequence of action taken on data to convert it into information which is meaningful for user. लाइक हमने पीछे भी पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन के होते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं. तो वो चीज़ कौन प्रोसेस करके देगा मुझे? CPU. आउटपुट, इट मेक द प्रोसेस डेटा अवेलेबल फॉर द यूजर. आउटपुट यूनिट जो है जहाँ पे मेरे पास पूरे का पूरा डेटा मेरे सामने आता है, जैसे मेरा मोनीटर, मेरा प्रिंटर. द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज. इज स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली. चाहे मुझे किसी भी चीज़ को परमानेंटली स्टोर करना है तो मुझे स्टोरेज यूनिट चाहिए, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. सो here is our third question, what are the characteristics or features of computer? The major characteristics of computer are following. Speed, a powerful computer can process data at very fast at the rate of millions of instructions per second. The speed of computer is measured in microsecond, nanosecond and picosecond. कंप्यूटर की स्पीड किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा होती है. इस इंस्ट्रक्शन को हम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन आज के टाइम पे हम बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर जैसे हमारे पास आ चुके हैं तो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो एग्जीक्यूट करता है मेरे पास. एक्यूरेसी, द कंप्यूटर प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन बिकॉज एरर आर यूजली ड्यू टू ह्यूमन rather than technology or may due to inaccurate data. Computer is based on the principle of garbage in, garbage out. Mean if the input is wrong then the output is wrong. क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर जो होगा उसी चीज़ को आउटपुट करके देता है जो मैंने उसे इनपुट दी होगी. अगर इनपुट एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो आउटपुट भी मेरे पास करेक्ट आएगी. अगर इनपुट ही इनकरेक्ट है तो मेरे पास आउटपुट भी क्या आएगी? इनकरेक्ट आएगी. स्टोरेज कैपेसिटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द कंप्यूटर हैज़ ए प्रोविजन टू स्टोर large volume of data into small devices which have capacity to store huge amount of data and help to retrieve of data and easy task. देखो होता क्या है कंप्यूटर में मेरे पास, जैसे हम सिंपल एग्जांपल पेन ड्राइव का लेते हैं. पेन ड्राइव बहुत छोटी सी है लेकिन उसके अंदर बहुत सारा डेटा हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं. वर्सेटाइल, कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क साइमल्टेनियसली. दे परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए सेम टाइम. It can accept information and perform operation and generate output. कंप्यूटर को हम एक वर्सेटाइल डिवाइस मानते हैं जो एक साथ क्या कर सकता है? मल्टीपल टाइप के काम जो है कर सकता है.
वो मेरे से इनपुट लेता है, उस इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है और बाद में मुझे क्या करता है, आउटपुट जो है जनरेट करके देता है। द नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। वंस द इंस्ट्रक्शन फेड इनटू द कंप्यूटर, इट वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। देखिए होता है कि कंप्यूटर को हम एक बार कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो तब तक उस काम को करता रहता है जब तक उसको लॉजिक उसका फिनिश नहीं हो जाता या उसकी जॉब टर्मिनेट नहीं हो जाती। मुझे बार बार उसको कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं उसे एक बार कमांड देता हूँ, उसके बाद वो अपने आप काम करता है। द नेक्स्ट, डेलीगेट, फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल। ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट एक तरह से सेम होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हम काफ़ी रिलायबल डिवाइस मानते हैं कि जो भी हम उससे आउटपुट हमें आवाज़ जनरेट होके आती है, द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल, बट इट इज़ रिलायबल ओनली व्हेन डेटा विच इज़ पासिंग एज ए इनपुट टू द कंप्यूटर एंड प्रोग्राम विच गिव इंस्ट्रक्शन एज ए कंप्यूटर एज ए करेक्ट और रिलायबल। बेसिकली क्या है, जो मैंने इनपुट उसे दी हुई है वो अगर मेरी रिलायबल और करेक्ट है तभी मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, रिलायबल और करेक्ट आएगी। अगर वो ही गलत है, वो इनकरेक्ट है, रिलायबल नहीं है, तो आउटपुट भी मेरे पास क्या आएगी, रिलायबल नहीं आएगी। डेलीगेट, कंप्यूटर को हम काफ़ी डेलीगेट डिवाइस मानते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शन विदाउट सफरिंग ऑफ फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। If millions of calculations are to be performed, a computer will perform every calculation with same accuracy। बेसिक कंप्यूटर को हम काफ़ी डेलीगेट डिवाइस मानते हैं क्योंकि ये कभी थकता नहीं है। इसे हम हज़ारों लाखों जितने भी कैलकुलेशन करने को दे देंगे, ये उन्हें बहुत ही आराम से कर सकता है। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो एक बहुत अच्छा डिवाइस है, लेकिन ये तभी अच्छे से काम करता है अगर हमारी इनपुट ठीक है। अगर मेरी इनपुट ठीक नहीं है, ये मुझे कभी भी करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। इफ़ इनपुट इज़ करेक्ट, output is correct. If input is wrong, then the output is wrong, because it works on the principle of GIGO, garbage in garbage out. Now we have some disadvantage of computer, like computer एक बहुत अच्छा डिवाइस है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट वन, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इट कैनॉट थिंक while डूइंग वर्क, इट डज नॉट हैव नेचुरल इंटेलिजेंस। जो मेन चीज़ है कंप्यूटर में वो है इसकी नेचुरल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पास नेचुरल इंटेलिजेंस ही नहीं है, इसलिए इसे पता नहीं लगता है कि जो इनपुट दी गई है ठीक है कि गलत है। वो उसी हिसाब से क्या करता है, मुझे रिजल्ट देता रहता है, अपने आप ये चीज़ को नहीं सोच सकता है। अनेबल टू करेक्ट मिस्टेक, इट कैनॉट करेक्ट अ मिस्टेक बाय इटसेल्फ, सो वी हैव प्रोवाइड रॉन्ग एंड इनकरेक्ट डेटा, देन इट प्रोवाइड रॉन्ग रिजल्ट एंड परफॉर्म रॉन्ग कैलकुलेशन। सेम चीज़ है, ये मिस्टेक्स को अपने आप करेक्ट नहीं कर सकता है। अगर मैंने कोई इनपुट गलत दी है तो उसको वो क्या करेगा, आउटपुट भी मुझे गलत ही देगा। नो IQ, नो फीलिंग, सेम चीज़ है कंप्यूटर। दे हैव नो फीलिंग, नो इंस्टिंक्ट, बिकॉज मशीन है ये, कंप्यूटर एक मशीन है, इसको कोई फीलिंग नहीं है, कोई इंस्टिंक्ट नहीं है। कंप्यूटर कोई मैजिकल डिवाइस तो है नहीं है, इसे एक ह्यूमन ने ही बनाया हुआ है, ये वही काम करेगा। इट कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट ह्यूमन कैन। द डिफरेंस इज दैट परफॉर्मिंग दिस टास्क विद अनथिंकेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए कंप्यूटर जो है कोई मशीन ही है एक तरह से, हमारे पास कोई डिवाइस है जिसको वही काम कर सकता है जो ह्यूमन उसे करने को बोलेगा। हाँ ये बात है कि ये उस काम को बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, लेकिन साथ में बात यह भी है कि एक्यूरेसी इस बात पे डिपेंड करती है कि यूजर उसे किस तरह की इनपुट देता है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे। अगली क्लास में मिलेंगे हम। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक्स।